मीन फॉर एवरीवन इट्स नॉट लाइक दैट. सभी को जो भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एवरीवन इज गिविंग ऑल दिस एग्जामिनेशन वेदर इट इज IBPS और RRB और SBI PO. लेकिन वी डोंट मेक प्रायोरिटीज व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग, वी वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज. तो उसी तरह मेरे साथ भी हुआ. आई पास आउट फ्रॉम कॉलेज एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन. साथ ही साथ मैंने सीजल की भी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, बट देन सीजल स्टक्ड ऑफ, वहाँ पर कोर्ट केस हो गया और ये सब चल गया. तो फिर उसके बाद मैंने सीजल छोड़ दिया एंड देन आई स्विच टू बैंकिंग कम्प्लीटली. सो उसी तरह मेरा स्टार्ट हुआ. आई अपीयर्ड फॉर RRB रूरल बैंक PO एंड देन IBPS PO एंड RBI assistant and after that finally SBI PO. So Great. I was able to crack that. This journey was long, but not that much long, which other people might face. Like I spent 1 year for banking examination. Okay. Not 1 year to complete, prepare for the not exam, complete 1 year. I mean, I'll tell you all the details later on. But ऐसा होता है कि there are people who spend 3 to 4 years also, and there are people who spend only 6 to 8 months, and they are able to clear that examination. Right. So it depends upon person to person कि कौन किसको क्या सूट करता है and how they go on with the flow. Right. मेरे साथ ऐसा हुआ था कि I passed out from the college in the year 2017. Okay. And after that, now my father wanted me to go for government examination. So I looked for opportunities after passing out because, well, I was an EC graduate. So how did the banking thing happen then? हाँ, engineering करी. So I passed out in the year 2017 and in the year 2016 demonetization came, if you remember, everyone remember, I guess. Right. So उसके बाद GST वाला थी. और ये ऐसा टाइम था कि like कंपनीज के लिए बहुत बड़ा झटका हो गया था. So companies stopped visiting campus. Right. For So I was in equipments, electronics and communication, and there were 2 or 3 core companies which used to visit our college. It was MediaTek and then Idea. Now Idea got merged with Vodafone that year. So they stopped recruiting. So वो लोग आए नहीं. So we were left with only TCS and Accenture, these kind of jobs. Yeah. So फिर हमने सोचा कि नहीं, अभी तो कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी चाहिए करियर में. So मेरे साथ जो है, I am a bit impatient. तो मेरे को चाहिए कि थोड़ा जो जल्दी हो जाए. तो मैंने देखा कि हाँ यार, अभी सिविल सर्विसेज नहीं, ये तो बहुत टाइम लेने वाला है. तो लेट्स गो फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन, क्योंकि ये हाँ प्रोसीजर भी थोड़ा सा जल्दी होता है और मतलब स्मूथ भी है. लाइक यू गिव प्री, आफ्टर 1 month you'll give mains, then after 1 month you'll give interview, and after a month or 2 you'll get that joining and all. So it's a 6-month complete process, जो कि शॉर्ट है. तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि I'll switch to banking. प्लस बैंकिंग में ये भी है कि इट्स अ वेरी सिक्योर जॉब, जो कि आई मीन सीइंग द करंट सिनेरियो, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ सिक्योर जॉब इन प्राइवेट सेक्टर इवन. सो मेरे को भी यही था. दो आई लव टू फेस चैलेंजेस. मेरे को नहीं चाहिए कि मैं कोई ऐसी कुर्सी वाली जॉब करूं जिसमें मेरे को कभी निकाला नहीं गया. इट्स ओके. One need to face challenges to learn something in life. Right. And that was my approach also. Right. But then I learned about SBI PO from my seniors. Like there was a senior from my college who cracked SBI PO in 2016. Okay. And then there was a batchmate also who cracked in 2017. So there were 2 people who were already there in SBI PO, and they told me about this exam. And उन्होंने बताया कि what is SBI PO and how is life in SBI. Right. And that's when you kind of felt like I should go for it. वही मेरा आंसर है कि इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग फॉर एवरी पर्सन. हो सकता है मेरे को तैयारी उस लेवल की हो कि मेरे को 6 months में ये एग्जाम क्लियर हो जाए, बट देयर आर पीपल जिनका थोड़ा बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता है. बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मेरा जीके अच्छा नहीं है. तो उनके हिसाब से उनका टाइम उतना बढ़ सकता है. बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप 6 months दे रहे हो तो वो 6 month आप फुल थ्रॉटल दो अपना. उसमें ये नहीं करो कि 6 months में 2 months का ब्रेक हो गया, 3 months का ब्रेक हो गया. लाइक मैंने क्या किया था कि मैंने 4 months दिए थे, बट वो 4 months मैंने बिल्कुल पक्के दिए थे. 4 months पक्के दिए थे. एक्चुअली मेरे साथ केस ये हो गया था कि वो जब 4 महीने दिए मेरे को डेंगू हो गया था. तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर IBPS PO मेंस एट दैट टाइम. सो डेंगू हो गया. हाँ, अभी डेंगू हो गया तो फिर वो मेरे को पूरा 2 हफ्ता तो रिकवर होने में लग गया उसके बाद. और डेंगू होने के बाद आपको अराउंड 1 month लग जाता है टू गेट बैक इनटू योर फुल टाइम टेबल. तो उसी बीच IBPS PO मेंस पड़ गया, तो मेरे साथ दिक्कत हो गई. मेंस उतना अच्छा गया नहीं, दो आई वाज एबल टू क्लियर इट. लेकिन उतना लाइक बैंकिंग एग्जामिनेशन वी ऑल नो कि मेंस ज़्यादा अच्छा होना चाहिए.
इंटरव्यू अगर थोड़ा सा हो भी गया राइट तो संभाल लेता है, अगर हाँ, मेंस का हाँ। आपका एग्जाम अच्छा हुआ है तो। सही बात इसीलिए अगर आपका मेंस खराब हो जाता है तो बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ता है इंटरव्यू प्रेशर में, ज्यादा बन जाती है हाँ। फिर एंड पे। तो इसके लिए फिर वो खराब हो गया। तो वहाँ पे ब्रेक मेरा हो गया। वो सबके साथ हो सकता है वो कोई भी कर रहा हो। हेल्थ इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज हैं, पर्सनल इश्यूज हैं, बहुत सारी इशू होती है इंसान के लाइफ में, तो वो पड़ती रहती वो हैं। 2 महीना जो आपका गया, फिर आपने हाउ डिड यू मेक अप फॉर दैट टाइम? वही वो 2 महीने जब गए, मतलब वैसे तो 1 महीना गया, बट उसके बाद फिर से फ्लो में आने में 1 महीना और लग गया, फिर से पढ़ने में। फिर उसके बाद ये लगा कि यार ये कैसी फील्ड है यार, ये तो अभी मैंने पढ़ा था 4 महीने, 1 महीना बीमार पड़ा, सब भूल गया मैं। ऐसा होता नहीं था नॉर्मली किसी और एग्जाम्स में। तो फिर उसको उठाया जीके को, कि जीके समथिंग विच इज वेरी डायनेमिक, राइट। डेली का डेली चेंज हो रहा है करंट अफेयर, तो आपको अपडेटेड रहना है। अभी 1 मंथ आप पढ़ाई से अगर दूर गए तो जीके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मेरे को बोरिंग लगता है, हो सकता है कई लोग को बोरिंग लगता हो, तो मेरे को थोड़ा जीके बोरिंग लगता था पढ़ना, क्योंकि मैं सोचता था यार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क, क्या यूज है मेरा नेशनल पार्क पढ़ने का। तो नहीं, थोड़ा सा बाद में जाके मेरे को रियलाइज हुआ व्हेन आई वाज इनटू दैट करंट अफेयर एंड ऑल, आई रियलाइज कि नहीं, ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू सोशलाइज इन सोसाइटी। क्योंकि आपके सामने अगर 5 लोग बैठे हैं एंड यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, आपको नॉलेज होनी चाहिए, बहुत जरूरत है। हाँ, तो जीके आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन गवर्नमेंट सेक्टर। राइट। बिकॉज बैंक में क्या होता है, बैंक में वी आई एम सिटिंग विद पीपल हु आर 45 50 प्लस एंड दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स एंड ऑल। हर समय उनकी वही बात चलती है। तो आइदर यू स्टे नम देयर और यू टॉक समथिंग, यू गिव अप योर पॉइंट्स, हाँ, वरना आप फिर नोटिस ही नहीं होगे कि ये भी बंदा आया हुआ है बैंक में काम कर रहा है। तो वो इंगेज होने के लिए थोड़ा जीके वीके का जरूरत था। तो हाँ, 1 महीना 2 महीना मेरे को लग गया फिर से। देन आरबीआई असिस्टेंट आया, तो उसके बाद मेरे को फ्लो बना आरबीआई असिस्टेंट के बाद। मैंने एज ए स्टूडेंट, हाँ, मैं तो थोड़ा व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वाज अ नर्ड, बहुत पढ़ता था, बिल्कुल वैसे जो होते हैं बच्चे वैसे टाइप का होता था, केवल पढ़ने वाला। एंड देयर इज वन थिंग आई वुड लव टू मेंशन इन बिटवीन ऑफ दिस कन्वर्सेशन कि पंक्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। और मेरे साथ ये चीज़ अच्छी है कि मैं हमेशा से पंक्चुअल रहा हूँ बहुत, और ये आदत मेरे फादर ने मुझे दिलाई है। तो व्हेन आई वाज अ किड ही यूज्ड टू मेरे को सुबह 4 बजे उठाते थे, 4 बजे उठाते थे, एंड देन ही यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक, और मुझसे कहता तुम पढ़ना बैठ के, मैं आता हूँ देखता हूँ पढ़ रहे हो कि नहीं। और उस बीच में मैं तो सो जाता था। तो वो आते थे, एंड व्हाट ही यूज्ड टू डू एट दैट टाइम, आई वाज अ किड, आई वाज इन क्लास 4th or 5th, वो मेरे को पूरा उठाते थे एक साथ। मैं सोने में ऐसा हूँ कि मैं सो ही जाता हूँ, मेरे को पता नहीं चलता। वो मुझे उठाते थे, बाथरूम तक ले जाते थे, ठंडा पानी गिरा देते थे। तो उन्होंने मेरे साथ 1 महीने तक लगातार ये काम किया है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे साथ पंक्चुअलिटी वाली चीज़ हमेशा से बन गई, और एक बहुत बड़ी चीज़ सुबह उठने वाली चीज़ हो गई मेरे साथ। तो मैं हमेशा सुबह उठ के प्रिपरेशन करने वाली आदत मेरी बन गई। तो स्कूल टाइम में हमेशा सुबह उठ के पढ़ता था, बहुत नर्ड था। तो हाँ, अच्छे स्कोर्स लाया बोर्ड्स में। तो उसके बाद सोचा इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। फादर ऑल्सो सपोर्टेड, हाँ ठीक है इंजीनियरिंग कर लो। तो बट वही है, इंजीनियरिंग उस समय और अब इस समय ड्रास्टिक चेंज आ गया है। काफ़ी तेज़ी से जॉब्स खत्म हो गई हैं इंजीनियरिंग सेक्टर्स में, एंड इंजीनियरिंग्स आर एवरीवेयर, नॉट ओनली इन इंजीनियरिंग, आई मीन दे आर नॉट इंजीनियरिंग बट एवरीवेयर। तो ऐसा वाला, हाँ, फुल ऑफ इंजीनियर्स, तो वैसा वाला केस हो गया है अभी। तो वही है, but that's something you always wanted to do, right? I always wanted to be an engineer. Okay. उसके बाद इंजीनियरिंग में भी पढ़ाई करी, क्योंकि पढ़ाई वाला कीड़ा मेरे को हमेशा रहता था कि कॉम्पिटेटिव हमेशा से था कि नहीं मेरे को स्कोर अच्छा करना है, अभी सबसे आगे आना है। ये वाला हमेशा रहता था कि कॉम्पिटेटिव रहना है और फर्स्ट आना, सेकंड आना है, ये वाली। हाँ, कई लोग कहेंगे कि ये बहुत ही नर्ड सा बच्चा है जो बात कर रहा है फालतू सी, और हो सकता है कई लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत कूल होंगे, पढ़ाई को लेकर चिल्ड होंगे, वो भी क्रैक कर सकते हैं एग्जाम। ऐसा नहीं है कोई पढ़ने वालों का एग्जाम है, ये बस राइट अप्रोच और राइट स्ट्रेटजी वालों का एग्जाम है। जो भी राइट स्ट्रेटजी और अप्रोच जिस दिन भी लेके स्टार्ट कर देगा, उस दिन ये एग्जाम उसके लिए आसान हो जाएगा। तो पढ़ाई को हाँ इंपॉर्टेंट इसलिए दूंगा क्योंकि उसने मेरे अंदर पंक्चुअलिटी लाई, सिंसियरिटी लाई। बट अगर आप नहीं थे, आप हो सकते हो, आप कॉलेज के बाद भी सिंसियर होगे, यू विल टेक टाइम, आपको 2-3 महीने एडजस्ट होने में लगेंगे। तो अभी बैंकिंग के एग्जाम्स जो भी होते हैं वो दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। तो कैसे होता है, वी हैव प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर जीडी एंड इंटरव्यू। तो जीडी इंटरव्यू एक साथ हो जाता है, प्रीलिम्स, मेंस और जीडी इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स में क्या होता है कि प्रीलिम्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 35 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग, 35 क्वेश्चन फ्रॉम क्वांट्स एंड 30 क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश। 60 मिनट्स का टाइम होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं। आसान तो नहीं है, बहुत टफ है अगर आप शुरू कर रहे हो तो। राइट। लेकिन
मेरा क्या है कि एक अप्रोच अच्छी होनी चाहिए आपके लिए. वी ऑल आर स्टडिंग. 15 lakh students fill the form and 15 lakh are studying. Not 15 lakh but 10 lakhs are actually studying. Right. But only 2000 are able to clear. There has to be a reason behind that, and the reason is what I think is कि strategy एक जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बैंकिंग एग्जाम्स में. आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सही डायरेक्शन मेहनत करने की ज़रूरत है. जैसे कि प्रीलिम्स में आप जब स्टार्ट करते हो तो प्रीलिम्स में सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, एंड बैंक एग्जाम्स के साथ एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वो चेंज नहीं कर रहे हैं पैटर्न. वो वही पैटर्न पे क्वेश्चंस आए चले जा रहे हैं. इवन प्रीलिम्स तो मतलब सेम आ रहा है. हाँ, मेंस में थोड़ा बहुत दे चेंज द टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट प्रीलिम्स तो वो लगभग सेम ही कर रहे हैं. कभी कभी उन्होंने एक दो पार्ट जैसे सिलॉग अब हटाना कम हो गया है, उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने हटा दी हैं, बट स्टिल मोर और लेस सेम है. तो प्रीलिम्स के लिए आप क्या कर सकते हो कि क्वेश्चंस जब क्वांट्स के लिए कर रहे हो 35 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 10 to 12 क्वेश्चंस दे आर फ्रॉम अरिथमेटिक. नाउ 20 to 25 क्वेश्चंस दे आर फ्रॉम डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सिस्टम, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन. ये जो पार्ट होता है 20 to 25 क्वेश्चन डिपेंड करता है, किसी एग्जाम्स में 20, किसी में 25 आता है. तो ये पार्ट आप 15 मिनट्स दो और ये निपटा दो. क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आपको बहुत टाइम लगनी ही नहीं चाहिए. क्यों? कैलकुलेशन ही तो करनी है. उसके लिए एक चीज आप और करो कि यू लर्न टेबल्स. आप ये थोड़ी बच्चों वाली बातों में सिखा रहा हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको आगे दिखेगा फायदा. आप टेबल याद कर लो, आप कैलकुलेशन दिमाग में करना शुरू करो. कई लोग क्या होता है ना, अभी मोबाइल का जमाना हो गया है और हम लोग हर चीज मोबाइल पे कर रहे हैं. वी आर लर्निंग एवरीथिंग ऑन मोबाइल. और लेकिन इन बिटवीन क्या होता है कि वी आर नॉट इन दैट इंटरफेस ऑफ दैट एग्जामिनेशन व्हेन वी आर स्टडीइंग एट होम. मैं क्या करता था, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाय अ लैपटॉप यू डोंट हैव. मतलब ऐसा नहीं है कि लैपटॉप ही होगा तो पढ़ाई होगी. बट आप ऐसे सोचो कि आप एग्जाम में जा रहे हो, आपको लैपटॉप, आपको कंप्यूटर स्क्रीन मिलती है, आपको सड़ा सा कीबोर्ड मिलता है जो चलता नहीं है, सेंटर पे डिपेंड करता है, प्लस आपको माउस मिलता है. तो मेरा जब प्रिपरेशन मैं कर रहा था तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं एक बेड टेबल रखता था. तो बेड टेबल वैसे भी स्मॉल साइज में होता है. आई यूज्ड टू पुट माय लैपटॉप देयर ताकि थोड़ी सी जगह बचे, जस्ट जैसा सेंटर पे होता है. अब देखते हो वो कीबोर्ड रखा था, थोड़ी सी जगह रहती है, हमें उसी में पेपर लगाना होता है. अभी हम घर पे क्या आराम से मोबाइल रखते हैं, बगल में टेबल रखते हैं, आराम से सॉल्व करते हैं. उतना इंटरफेस तो अच्छा होता ही नहीं वहाँ पे. तो अगर आप शुरू से वैसा ही बना लो तो आपको वहाँ बहुत फायदा देगा. तो मैं ऐसी बेड टेबल पे छोटा सा बना के अपना उसके साइड में लिखना, वहाँ से प्रैक्टिस करता था. इससे फायदा ये होगा कि आप लैपटॉप में जब करना शुरू करोगे ना, पहली बात मोबाइल की स्क्रीन छोटी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक आता है पैसा जितना बड़ा, आप उसको बार बार स्क्रॉल करोगे, उसके बाद देखोगे. एक बार जब लैपटॉप में देखोगे एक बार में पूरी चीज सामने दिखेगी, फटाफट पढ़ोगे. दूसरा फायदा ये बात है कि आप लैपटॉप में जब देख रहे हो, आप सामने रखो अपना पेपर और सामने देखो और नीचे लिखो. ये वाली आदत आपको बनानी पड़ेगी अगर बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर करने हैं बहुत आराम से. सामने देखो नीचे लिखो वाली आदत आपको बहुत अच्छी बनाएगी. तो राइटिंग तो बनानी नहीं है हमने तो कोई स्पीड लानी है ना. तो आप सामने देखो, नीचे लिखने वाला जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बना लो. आपके बहुत तेजी से कैलकुलेशन स्पीड इससे सही हो जाती है. आप देखते रहो, लिखते रहो. फाइनल एक बार क्या होगा कि आपको लगेगा गलती कर सकते तो एक बार तुरंत देख लो कि मैंने सब कुछ सही लिखा रहेगा. रीजनिंग के लिए मैं ये कहूंगा कि रीजनिंग में आपको, जैसे हम क्या होता है कि हम पजल से बहुत डरते हैं, क्योंकि पजल 20-25 मार्क्स से आता है. हम कहते हैं पजल पहले नहीं करेंगे, हम पहले ब्लड रिलेशन कर लेते हैं, हम पहले टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड कर लेते हैं, ये डिस्टेंस कर लेते हैं, डायरेक्शन कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं. अच्छा, दिक्कत क्या है कि वो 20 क्वेश्चन किए बिना आपका रीजनिंग तो क्लियर होना नहीं है. तो वो 20 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं. अब आप ऐसे सोचो कि लास्ट के अगर 5 मिनट आपको मिलते हैं और लास्ट के 5 मिनट में आपने एक पजल उठाई और वो पजल आपसे नहीं बनी, तो 5 मिनट तो पूरे वेस्ट. फिर आपने सोचा यार एक पजल उठाई, वो बनी नहीं, कॉन्फिडेंस गया, रीजनिंग पहला सेक्शन आता है, आप दूसरे सेक्शन में खराब करोगे. मेरा क्या अप्रोच होता था कि आई स्टार्टेड विद पजल. ठीक है, अभी पजल पहले उठा लो, 5 मिनट में हो सकता है पजल ना बने, 7 मिनट में बन जाएगी, बट वो 5 क्वेश्चन तो आपके फिक्स हो गए. अब आखिरी के जो 5 मिनट आप पजल के लिए बचाते थे, जब वो 5 क्वेश्चन आप मिसलेनियस क्वेश्चन के लिए, मतलब वो 5 मिनट आप मिसलेनियस क्वेश्चन के लिए बचाओगे, तो वो जल्दी सॉल्व होते हैं. वो आपके 1 मिनट में 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, भले पजल आपका 5 मिनट में एक सॉल्व ना हो, लेकिन मिसलेनियस तो पक्का सॉल्व होना है. तो वो अप्रोच करनी चाहिए, पजल को पहले और बाकी मिसलेनियस क्वेश्चंस को बाद में करना चाहिए. एंड में बाय द टाइम ऑब्वियसली पैनिक भी करने लग जाते हैं, बिल्कुल पैनिक होने लगता है. तो उस समय आप ब्लड रिलेशन ये सब कर सकते हो. ये सब आपके दिमाग उस समय चलता है इनके लिए. पजल के लिए कभी-कभी प्रेशर आ जाता है, यार पजल हो नहीं रही और टाइम खत्म हो रहा है. ये हो गया. इंग्लिश के लिए मैं वही कहूँगा, थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड फर्क पड़ता है, नो डाउट. एजुकेशनल बैकग्राउंड का बहुत फर्क पड़ता है इंग्लिश पे.
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नामुमकिन है उनके लिए जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं या जो यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, ऐसी जगह से भी कई लोग आते हैं। तो आप लोग के लिए ये सजेशन है मेरा कि अपनी रीडिंग स्किल्स को अच्छी करिए। आप जितना रीड करेंगे आप उतना कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे चीज़ों को। तो रीडिंग स्किल सही करने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका जो मैंने लगाया कि आपको बैंकिंग भी सीखनी है और आपको इंग्लिश भी करनी है। तो दो ऐप हैं, इकोनॉमिक टाइम्स ऐप एंड द हिंदू। दो ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में। डेली न्यूज़ पढ़िए। डेली न्यूज़ का मतलब ये है कि ऐसे मत करिए कि सुबह सुबह उठे और जैसे हम अखबार पढ़ते हैं वैसे उठा के पढ़ लिया, नहीं। हर एक घंटे में उसको स्क्रॉल करिए, क्योंकि हर एक घंटे में अपडेट होता है। आप वो न्यूज़ पढ़िए। अब वो न्यूज़ जो होता है ना, इट्स इन अ फॉर्म ऑफ आर्टिकल। वो क्या करेगा, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फील देगा। तो पहले आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपका साथ साथ तैयार हो रहा है, प्लस आपकी बैंकिंग भी सही चल रही है, क्योंकि आप इकोनॉमिक टाइम्स ऐप पढ़ रहे हो, उसमें न्यूज़ फालतू की होंगी नहीं। कभी उसमें बॉलीवुड की न्यूज़ नहीं मिलेंगे आपको, उसमें केवल फाइनेंशियल और इकोनॉमिक न्यूज़ ही मिलेंगे। तो वो आपका बैंकिंग भी अच्छा कर रहा है, प्लस आपकी इंग्लिश भी उसके थ्रू सही हो रही है। तो जितना ज़्यादा रीड कर सकते हो उतना ज़्यादा रीड करो। एडवांटेज क्या होता है रीडिंग करने का, इंग्लिश 30 क्वेश्चंस आते हैं, 20 मिनट्स होते हैं, मोर देन इनफ है। 20 मिनट्स आर मोर देन इनफ टू अटेम्प्ट 30 क्वेश्चंस। आप अगर जल्दी जल्दी पैराग्राफ रीड करना सीख लोगे ना, तो आरसी आप 6 से 7 मिनट में पूरी आरसी निपटा सकते हो 10 क्वेश्चन की। तो ये आपकी स्पीड बढ़ाएगी। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको इन एग्जाम्स के लिए, बिकॉज एक कोट है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ फ्रॉम द मूवी द शॉशैंक रिडेम्पशन, कि होप इज अ गुड थिंग, मे बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग एंड नो गुड थिंग एवर डाइज। और यही चीज़ आपको फॉलो करनी है लाइफ में। अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करना है, होप रखनी जरूरी है। आप वर्ष पे हो, आपको जब भी लगे ना कि यार अब गिव अप करने का मन कर रहा है, अब नहीं, आप समझ लो आप वर्ष पे आ गए हो, तो एक एफर्ट और आपका क्लियर होगा एग्जाम। तो डोंट गिव अप।